Welcome friends. Today in this lecture, that is the lecture number 15, I am going to discuss some numericals which will be based on your lecture number 14. What is lecture number 14? Lecture number 14 is all about your sinusoidal steady state एनालिसिस, साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। ये सर्किट इस लेक्चर नंबर 14 में हम लोग ने क्या देखा, कोई भी सर्किट हो उसको हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे और कैसे उसका फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द न्यूमेरिकल्स। वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इफ देयर इज अ पैरेलल RLC circuit which is excited by sinusoidal waveform, sinusoidal voltage, then we need to सर्किट हम लोग को बनाना है, सर्किट इक्वेशंस एंड फेजर डायग्राम equations, time domain, there is two equations, that will be time and one will be in frequency domains, and for the circuit also. Okay, so let's start with our discussion. So in this I am going to solve this question, that is the theoretical question. Let the RLC circuit, parallel RLC circuit be like this one. Okay, this is your parallel RLC circuit. R is here, and there will be parallel inductance RL, and then there will be a capacitance of C. Here it is a parallel RLC. In resistance we can write resistance, suppose this is your impedance Z और this is your Y means admittance. So resistance को हम लोग admittance के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, G means 1 by R. Okay, similarly for XL is what, Z is what, for the inductor, pure inductor, there will be JXL. This will be written as minus of J into BL in admittance. Okay, for capacitance is what, minus J X of C, and that will be written as plus J of BC. Okay, so this is your impedance and this is for admittance. This is for pure resistance, this is for pure inductor, and this is for pure capacitor. मीन्स प्योर कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, माइनस जे इंटू एक्स सी, एंड फॉर प्योर कैपेसिटेंस व्हाट इज द एडमिटेंस, इट इज जे इंटू बी सी. बी सी इज ससेप्टेंस, बी सी इज व्हाट, कैपेसिटिव ससेप्टेंस. ओके, सो व्हाई आई एम राइटिंग हियर एडमिटेंस, बिकॉज in parallel if there is a elements are in parallel, then admittance will be simply add up. Total admittance will be sum of all the admittance. Okay, in parallel. Okay, if that one is in series, then we will use the impedance, so that it will be easy to solve the questions. Okay, so we will write here what is this one, resistance. In admittance it will be G. What is the inductor, that will be minus J into BL. Okay, for the capacitance what we can write, minus plus J into B of C. Let the current be in this branch IC phasor. Okay, this will be the current I phasor, and this current will be I of R, this will be IL of phasor, and this is your V phasor, which is equal to V angle 0 degree. Let it be reference. It is what, parallel RLC circuit in frequency domain, we can write in frequency domain. Okay, if this how to draw the time domain circuit, that will be simple, V of t
a small b, a small I, and this will be R, this will be L, this will be C simply. But in parallel RLC circuit in frequency domain, we can write in frequency domain or in the form of phasor form. Okay. Now, for this circuit we are going to write the KCL equations. KCL, write the KCL at single node. Single node is what? This node or this node or this node, all nodes are equal in the upper branch. Okay. So, we will write the KCL. KCL will be what? Tell me. Sum of the current to the node entering current will be equal to outgoing current. So, I equal to IR plus I L plus I of C. Okay. So, therefore, what we can write, current will be equal to, what is IR? I will be current, current will be admittance into voltage. Current will be what? Current will be admittance into voltage, that is the simple formula. Okay. So, I will be, I of R will be equal to, admittance is how much, that is the G, or what is the voltage across this resistance, V. V phasor means that is the same as V phasor is same because all the elements are connected in parallel. So, it will be G into V. So, similarly for I of L, what is the admittance? Admittance is minus J into B of L. So, this will be into voltage, okay, plus I of C is how much? J into B of C, admittance into voltage. Okay. So, this is your KCL equation. So, by simplifying, what we can write, current vector will be equal to, current phasor will be equal to, what will be the current phasor? Current phasor will be equal to G minus of J bracket of B L minus B of C into V phasor. Okay. So, let this be equation number 1. Okay. So, this is your final equation for this is the equation number 1, which represent the parallel RLC circuit in frequency domain. Now, we need to draw the phasor diagram for the RLC parallel circuit. Okay. So, for this we will assume let your BL is greater than B of C. Let BL is greater than B of C. Okay. So, if BL is greater than B of C means inductor value is BL means how much? BL is 1 by XL. What is this? BL is greater than BC means inductive resistance is less. So, current will be high means inductive will be nature. So, nature of the circuit will be inductive in nature. So, lagging current will flow. So, current will lag as inductive in nature, inductive circuit in nature. सर्क्यूट का नेचर कैसा हो गया? इंडक्टिव. सो करंट हमारा क्या होगा? लैग करेगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम एज वी हैव टेकन वोल्टेज एज अ फेजर अथी रेफरेंस. सो वी विल ड्रॉ, this is your reference voltage which is equal to V angle 0 degree. Okay. Now, from this I am going to draw the current IR. IR will be what? That will be in phase with the voltage. Okay, because there is resistance. Resistance is nothing but a real value only. So, IR means current will be in phase with the voltage. So, IR will be here only. So, this is your nothing but IR phasor, which is nothing but your G into V phasor. So, it is directly proportional to voltage or in phase with your voltage. Okay. So, this is your I of L. Now, we need to draw the I of C. What will be the I of C? I of C will be I of C will be how much?
I of C will be, what will be the I of C, tell me? I of C is the capacitive current, so current will be lead. So current will be lead. Lead what? How much? It will lead the voltage. So perpendicular to the voltage your current will be there. So this will be your I of C. I of C will be equal to, I of C will be equal to how much? J into BC into V phasor. So this is your nothing but your perpendicular to your voltage. So this is your I of C. Okay. Now as BL is greater than BC means XL is less than XC. XL is less, so more current will be flow through the inductor, means IL will be more. IL will be more. So IL will be more like this one. So this is your IL. IL means inductive current will lag the voltage. Applied voltage is V. So it will lag by how much? By 90 degree. So this is nothing but your IL is how much? Minus J into BL into V phasor. So it is lagging by minus J. Minus J means minus 90 degree. Okay. So where will be the IL plus IC? As we know, IL will be greater than I of C because BL is greater than B of C. Therefore, what will be this one? Tell me. This will be here somewhere. Let IL is greater than I of C. So this will be IL phasor plus IC phasor. Okay. This is your IL plus IC and this is your IR. The resultant of these two will be your the net current. So this will be your resultant current. Okay, this is your resultant current, let it be I phasor. Okay, and this I phasor, so net current is lagging the your voltage by phi, because phi is what? Phi is nothing but your phase angle. Phi is your phase, phi is your power factor angle, because this is your phi is the angle between your V and I. So this is your phase angle, what we can say, power factor angle. Okay. Or what is the I? I is main I, means which I? This I and this I. Angle between these two V and I is your power factor angle phi, and the value of the phi is given as tan inverse of 10 inverse. In this case, the imaginary part this one and real part this one. So imaginary by real. So this will be your BL minus BC by G. So this is your phi. Phi means power factor angle. The current would lag voltage if VL is greater than VC and would lead if BC is greater than BC. So if BC is greater than BL, then the diagram will be phasor diagram will be different. In that case your current will leads voltage by phi angle, by phi. In this case, if this is your condition, then current will lead. If this is your condition, then current will lag. Okay. For the parallel RLC circuit. So this is your phasor diagram for the parallel RLC circuit. Okay. Now we will move for the second question. So second question, for the circuit I phasor is equal to 5 angle 0 degree ampere. Okay. Number A, find C. C means capacitance if voltage phasor is 100 plus J 200 volt. Okay. And omega is equal to 1.2 kilo radian per second. Okay. Number B, find C if
omega equal to 200 radian per second and voltage is equal to 100 volt. This is important question. Okay. So, circuit diagram is given like this one, R, L and C, RLC circuit. Okay. Let this be plus minus, V phasor is here, this is your current phasor. Okay. This is your resistance R of 20 ohm, L means 0.05 Henry, and this is your capacitance of C. This is your diagram, it is given. Okay. Now, we need to solve the questions. Okay. So, solution will be for the circuit, for this circuit the current I phasor is given 5 angle 0 degree. So, we will solve the number A. Number A, what is given? Omega. Omega means angular frequency is given, omega equal to 1.2 kilo means 10 to the power 3 radian per second. Okay. And XL, XL is how much? XL is nothing but your omega into L in frequency domain. Inductor is represented as XL, that is omega L. So, XL equal to omega L. So, omega is how much? We will put the value 1.2 into 10 to the power 3 omega, and what is the value of inductance? 0.05. So, this will be your 60 ohm. Okay, this is your XL. What will be the X of C? X of C will be 1 by omega C. We know this one is the simple formula to find out the impedance of pure capacitance, that will be X of C, and that will be equal to 1 by omega. Omega is how much? 1200 radian per second, 1200, and capacitance is C only. Okay, let it be C. So, this is your XL and XC. Unit of the XC is obviously ohm. So, this is your case. Now Z, by looking at this side, what we can write the Z impedance? Impedance will be voltage phasor divided by current phasor. Simple, voltage phasor divided by current phasor. Okay, and also Z, what we can write? Z will be equal to R, this will be JXL, and this will be minus JXC. So, total Z will be how much? We will add all the impedance. So, what is the impedance for resistance? R plus JXL minus JXC. So, this is your total Z. So, in question number A, your voltage phasor is given and current is already given, voltage current is given. So, from this one value will become, this will become, and in this equation your R is known. How much R is? R is your 20 ohm. What is JXL? JXL is this much. What is JXC? We will put this value, and by putting this value we will able to find out the values of the given for the C values. Okay. So, we will write the equation. So, this will be this 20 plus J60 minus JXC minus JX of C. Okay. And this will be equal to, what is the voltage phasor? 100 plus 200J divided by how much? 5 angle 0 degree. Okay. So, by putting the values in the calculator, we can easily find out this complex calculation. Okay. So, this will be nothing but your 20 plus 40J, or we can just simply divide that by 5. Angle 0 is nothing but your real term. Okay. So, this is your equation. So, from this, by comparing what we can write here? X of C, this 20 is cancel out. Okay. So, 40J will be equal to this much. So, XC will be that side. So, 60 minus 40, that is 20J. So, XC will be your 20, XC will be your 20, unit is what? Ohm. XC will be 20 ohm. So, if you know XC, and XC will equal to how much? XC, tell me, XC is what?
1 by omega c. So, we will put here x equal to 20. So, from this c equal to 1 by 20 omega. So, 1 by 20 is there, omega is how much? 1200. So, this will be equal to 12 into 2, 24,000. 24,000 means this will be 41.67 micro capacitance is farad. So, this will be your answer. Capacitance value will be 41.67 value. Okay. Now, we will move for the second part of the question, that is B number. In this case, find C capacitance value if omega is this much and voltage is this much. Voltage is 100 volt, its angle is not given, only magnitude. V is what? Only magnitude is given. Okay. So, what we can write? We know the equation V phasor will be equal to Z into I phasor. It is a simple equation. Voltage will be equal to, this circuit can be written as like this one. V phasor, and this is your current phasor, and this is your nothing but your Z. And Z is how much? R plus JXL minus JXE, because it is a series combination. So, simply what we can write? V equal to voltage equal to Z into current. Okay. Now, we will take the mod value, mod of V phasor equal to mod of Z into I phasor. Okay. So, from this one we can find this 100 volt is given as magnitude only. Okay, not the angle. So, magnitude of voltage is 100 volt, that will be equal to magnitude of I. Okay. So, mod of I, magnitude of I is how much? 5 angle 0 degree, magnitude of 5 angle 0 degree, that will be your nothing but your 5 only, 5 amps. Okay. And magnitude of Z, how to find out the magnitude of Z? Actually, Z is what? R plus, what is Z? What is Z? Z equal to R plus J XL minus J XC. Okay. So, mod of Z square will be equal to simply R square plus XL minus XC का whole square. So, this will be your modulus of Z square. Okay. Okay. So, mod of V is 100 will be there. Okay. And mod of Z and mod of I, mod of Z is will be how much? Mod of Z will be R square. R square means, R means how much? 20. R is what? 20. So, where R is equal to 20 ohm, XL is how much? XL is 10 ohm. It is simple, omega L we can put. How this one? XL equal to omega into L. Omega is how much? Omega is nothing but your 200. Omega is how much? 200. So, it will be 200 into L is how? 0.05. So, this will be your 10 ohm. So, this is your XL value. Okay. R is given, by looking at the circuit we can find out the R value, that is the 20 ohm. XL, okay. XC, for the XC no need, we will see. Okay. So, we will put here Z equal to R square. R square means 20 square. R square means 20 square plus XL is what? XL is 10 minus XC whole square power half into current, mod of current is 5. So, this will be multiplied with 5. So, this is your simple equation. Okay. So, by solving this one, by squaring, this 5 will be cancel out with 100. So, it will be 20, or this square root will be we will square both sides. So, it will be 20 square equal to 20 square plus 10 minus XC whole square. So, this will be your equation. So, from this equation what we can find out? Xc will be equal to 10 ohm. Okay. And we know that Xc equal to 1 by omega c, that is the simple formula. So,
capacitance will be equal to 1 by 10 omega. 1 by 10 into omega is how much in the second option? Omega is B. For the B option, omega is 200 radian per second. So 200 radian per second. So this will be 200 2000. So it will be 500 microfarad. So this will be your answer for the capacitance for the option number B. Okay. If you have any doubt, kindly comment in the comment section एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंटली मिलते रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ठीक है. फाइंड आर एंड सी. ओके. गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए. गिवन वी ऑफ बी इक्वल टू 3 इंटू वी ऑफ ए एंड वी ऑफ बी एंड वी ऑफ ए are in quadrature. Quadrature means perpendicular. Okay. Find also the phase relation between V, VB, VA and I. Okay. The circuit is given like this one. This is RL and again there is a R and there is a capacitance C. This is your two terminal. Okay. In this circuit the current is given like this one, I phasor. Okay. This is your 6 ohm resistance, this is your 0.0255 Henry and this is your R and this is your C, capacitance. Let the voltage from here to this node is your V of B. Okay. V of A, this is your V of A, and from this node to this node is your voltage V of B. Okay. Simple. And the total voltage means from this node to this node is V, that is your 240 volt and 50 hertz supply is given. 240 volt and supply is 50 hertz is given. Okay. Now we need to solve this question. Okay. So this is easy and interesting question. Okay. We will see the solution. Yeah. So in this case क्या बोल रहा है कि हमको क्या है, R and C, this and this we need to find out. VV equal to 3 into VA is given equation, and also VB and VA are in quadrature. Quadrature means perpendicular. VA या VB एक दूसरे का क्या है, आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग, और क्या सप्लाई दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट ड्रॉ कीजिए. फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट. फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में हम ड्रॉ करेंगे, हम लोग फेजर को ड्रॉ करने वाले हैं. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट क्या हो जाएगा आपको, सिंपल, ये R हुआ, उसके बाद L है, उसके बाद फिर से R है और फिर से कैपेसिटेंस. बस यही है सर्किट. ठीक है. दिस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में, माइनस JXC. इसको तो R, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, ये R है, ये इंडक्टर थोड़ी है, ये तो R है ना, इंडक्टर नहीं है. This is nothing but your R. So this is your R. Okay. This is J8 ohm and this is your 6 ohm. How we have find this one, XL. XL will be how much, tell me. XL will be omega L. Omega is what? Omega equal to 2 pi f. Frequency is how much, supply frequency is 50 hertz.
So and 50 hertz is there, so 2 into 50 100 and pi value is 3.14, so this will be 314 radian per second. So L will be 0.0, L will be how much, 0.0255. so we will multiply these two, and by multiplying we will get 8 ohm as your XL. Okay, any doubt? Okay, simple question is this one. Okay, so 8 ohm I have written, and the current in this is I phasor, and let the voltage across these two is V of A phasor, and across these two is V of A phasor, and across this one is V of B phasor, and the net voltage phasor is V phasor. Okay, see this one is your phasor diagram. Okay, simple phasor diagram means circuit in frequency domain. Now we will take I phasor as रेफरेंस. आई फेजर को हम लोगों ने क्या लिया, रेफरेंस. इसका मतलब क्या हो गया, आई फेजर को रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, आई एंगल 0 डिग्री, मीन्स इसको हम लोग 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, रेफरेंस. ठीक है, रेफरेंस लेने का मतलब हो गया हम इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे. सो वी विल ड्रॉ दिस वन. 0 डिग्री मीन्स फेजर फॉर्म में कर रहे हैं तो एंगल के रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस विल बी योर 0 डिग्री, I phasor, and this is your reference. Now ये बताइए, ये करंट और ये जो रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, दैट इज I इंटू आर. आर क्या, 6, R इंटू 6 या फिर I इंटू 6 या फिर I इंटू आर, ये दोनों किसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, ये करंट के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में जो फेज एंगल होगा वो सेम ही होता है, कोई चेंज नहीं होता है. सो दैट मीन्स दैट योर R of I and 6 of I phasor will be in the same phase. So R of I phasor और 6 I phasor क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, फेज किसके साथ रहेगा, जो करंट का फेजर है, जो रेफरेंस माने उसी के फेज में होगा. यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? अब इसमें क्या करना है, अब बताइए, इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इंडक्टर में, ये वाला जो इंडक्टर है, इसमें देखिए ये करंट है, ये इंडक्टर है, तो करंट से इंडक्टर क्या करना चाहिए, लैग, मीन्स वोल्टेज क्या होगा, लीड. वोल्टेज लीड करेगा कितना से, 90 डिग्री से. मतलब वोल्टेज जो होगा, इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा VL इस साइड होगा, और ये IL इधर होगा, और VL इधर होगा. समझ गए, क्योंकि करंट वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा. करंट लैग करता है इंडक्टर में, वो भी 90 डिग्री से. तो यहाँ पर IL का मतलब क्या है, I एंगल 0 डिग्री, क्योंकि IL R या C सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, I. सो यहाँ पर 6I ड्रॉप हुआ, ये वाला पॉइंट, 6I ड्रॉप ये वाला पॉइंट हुआ. अब यहाँ से परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको इंडक्टर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा. ठीक है, इंडक्टर वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, दैट इज इसमें जो ड्रॉप होगा वोल्टेज, सो दैट विल बी योर परपेंडिकुलर. तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर. सो इस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा बताइए, J इंटू 8 इंटू आई फेजर, J इंटू 8 इंटू आई फेजर. सिंपल. तो ये हो गया आपको परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखना है. ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग. सो अब इस दोनों का रिजल्टेंट मीन्स 6I, ये वोल्टेज और ये इस वोल्टेज, दोनों को अगर रिजल्टेंट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, V of B आएगा. सो V of B हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपको V of B फेजर. समझ गए, V of B फेजर. अब मान लीजिए इसको एंगल इसके साथ है θ1, क्या है एंगल, θ1, VB हो गया, θ1 हो गया. अब देखिए, अब हमने क्या लिया है, R of I ये वाला लिया. अब बताइए कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, -J, मीन्स जो करंट होगा उससे -J मीन्स -90 डिग्री, मीन्स परपेंडिकुलर लेकिन नीचे में होगा. सो क्योंकि करंट क्या करता है कैपेसिटेंस में, करंट जो है कैपेसिटेंस में लीड करता है, करंट क्या करता है, लीड, और करंट लैग करता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको V of C,
इसको क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस क्या है देखिए, जे एक्सी इंटू आई फेजर। ये हो गया हमारा करंट। करंट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप इन अ कैपेसिटेंस। सो इसका रिजल्टेंट क्या देगा, इस दोनों रिजल्टेंट आर आई और ये जे एक्स सी का रिजल्टेंट क्या है, वी ऑफ ए। सो दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट योर वी ऑफ ए फेजर। एंड द एंगल बिटवीन, एंगल क्या होगा इसका, एंगल हो जाएगा इसका, लेट इट बी थीटा 2। एंगल क्या है, थीटा 2। तो ये हमारा बन गया फेजर डायग्राम। अब हम लोग इसमें प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए वी ऑफ ए एंड वी ऑफ बी बोथ क्या है, क्वाड्रेचर है, एज वी बी एंड वी ए आर इन क्वाड्रेचर। अब यहाँ से हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि वी ऑफ बी आगे होगा, वी ऑफ बी ऊपर होगा, और तो वी ऑफ ए इस साइड होगा, और इस दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वी ऑफ बी यहाँ पर क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, ऊपर है, और वी ऑफ ए नीचे है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सिंपल, इसका मतलब यही हुआ। और वी कैन से, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेचर में है तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, वी स्क्वायर जो होगा, वी स्क्वायर यहाँ से डायग्राम में देखिए, ये जो वी फेजर है या फिर ये जो वी है, ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस दोनों का सम होगा, फेजर वेक्टर सम ही है ना, ये तो वेक्टर मीन्स फेजर सम। सो वी फेजर इज इक्वल टू वी ऑफ ए फेजर प्लस वी ऑफ बी फेजर। तो इसका परपेंडिकुलर है तो सिंपल हम लोग लिखते हैं वी फेजर स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सिंपल है क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए सिंपली हम लोग स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। समझ में आया। और गिवन क्या है, गिवन है हमारा वी ऑफ बी इक्वल टू 3 वी ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वाइज है, एंगल वाइज नहीं है, मैग्नीट्यूड है। सो वी विल पुट हियर, सो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 ना प्लस 1 10, सो 10 इंटू वी ऑफ ए स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। और ये भी दिया है, क्या दिया है, मॉड ऑफ भी कितना दिया है, सप्लाई वोल्टेज दैट इज़ 240 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ दिया है देखिए यहाँ पर, ये जो है सप्लाई वोल्टेज कितना है भी, तो मैग्नीट्यूड है वो, फेजर नहीं है क्योंकि उसमें एंगल मेंशन नहीं है। सो क्या लिख सकते हैं, 240 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू वी ऑफ ए का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन फाइंड आउट वी ऑफ ए। वी ऑफ ए आपका आ जाएगा 75.9 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। अगर वी ऑफ ए आ गया तो वी ऑफ बी क्या होगा, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, यहाँ पर भी पुट कर सकते हो आप, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कितना है हमारा 75.9 इंटू 3, सो दिस इज योर 2 to 7.7। okay, so V of B will be 2 to 7.7 volt। okay, so this is your V of A and this is your V of B। V of B कैसे निकाले, ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, दिस इक्वेशन, और वी कैन यूज दिस इक्वेशन। ओके, सो V of B, V of A एंड V of B आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, R एंड C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो V of A एंड V B आ गया। नाउ फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, सिंपल है, tan इनवर्स थीटा 1 क्या होगा, tan इनवर्स, यहाँ से देखिए थीटा 1 क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मैग्नीट्यूड वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्या हो गया, 8 इंटू आई फेजर डिवाइडेड बाय tan थीटा इक्वल टू बेस perpendicular by base means perpendicular is this one and base is 6i, so mod of 8i phasor by 6i vector, सबका मॉड मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो सो दिस विल बी 8/6, tan इनवर्स 8/6 कितना होता है,
tan inverse 8/6 and this is nothing but your 53.1 degree. समझ में आए. Similarly we will find out the theta 2, that will be equal to tan inverse of tan inverse, or we can say 90 minus भी कर सकते हो, or we can say from this what we can write, tan inverse this by this, that is xc by r, or this is nothing but your 90 degree minus theta 1 and this is nothing but your 36.9 degree. Okay, very easy. Now we will go for the V of B. V of B phasor. V of B phasor is how much, tell me. V of B phasor is क्या होगा, V of B phasor 6I phasor plus J8I phasor. So it will be 6I phasor plus J8I phasor. Okay, it is the phasor form. So in the magnitude term what we can write, VV square equal to VV square will be equal to 6I square plus 8I square, as both are perpendicular, so this will be simply squaring. ओके क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो उसका जो मॉड वैल्यू निकालते हैं वो क्या लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. सिंपल, जो भी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सिंपल इक्वेशंस हैं. सो फ्रॉम दिस वन वी विल पुट द वी इज हाउ मच 227, उसको इसमें पुट कीजिए VV स्क्वायर, और आई का वैल्यू कितना है यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो आई विल बी इक्वल टू 22.8 amps. Very easy. Now similarly we will go for the tan theta 2. So theta 2 is this much. Okay, so tan theta 2 will be equal to xc by r. Tan theta 2 will be equal to xc by r. So tan theta 2 will be equal to xc by r. So we will put here how much, tan theta 2 means 36.9. So tan of 36.9 degree, that is equal to 0.75. So from this what we can write, xc equal to 0.75 into r. This is, let it be equation number 1. Okay, and also what we can write about the VA phasor. VA phasor के बारे में क्या लिख सकते हैं, VA phasor ये है, तो RI प्लस माइनस JXC, इस दोनों का रिजल्टेंट ही है VA phasor. सो VA phasor क्या हो जाएगा आपको, RI phasor माइनस JXC इंटू I phasor, सिंपल. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, VV का मॉडुलस वैल्यू निकालना है, VA स्क्वायर इक्वल टू RI स्क्वायर प्लस XC इंटू आई का स्क्वायर, मॉडुलस वैल्यू, मॉड वैल्यू है. सो V of A इज हाउ मच, 75.9 का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन. ओके, एंड सो दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर, वी विल टेक एन एज कॉमन, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, 75.9 का स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वन what we can write, 75.9 will be equal to I into R square plus X. This is simple mathematical equation, you can solve in many ways. Okay, जो आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर विल बी हाउ मच, 11.09. सिंपली यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइंड आउट द रिजल्ट. ये कैसे आया, क्योंकि I का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर जो फाइंड आउट किए थे उसको हम लोग इसमें पुट किए हैं सिंपली, ठीक है. सो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 11.09. ओके, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, XC का वैल्यू ये है, ये हम लोग पुट करेंगे. सो R स्क्वायर प्लस XC मीन्स 0.75 इंटू R का होल स्क्वायर इक्वल टू 11.09. So from this one what we can find, R equal to 2.664
ओम। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड देयरफॉर एक्स सी विल बी व्हाट, एक्स सी कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। आर का वैल्यू पुट करके एक्स सी निकालिए। एक्स सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पुट कर दीजिए 2.664 इंटू 0.75। ये कहाँ से निकाले, ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो सिंपली। ओके, सो फ्रॉम दिस वन what we can find out xc, xc equal to 1 by omega c, 1 by omega c equal to r means 2.664 into 0.75। ओमेगा का वैल्यू कितना वैल्यू है, 2 पाई एफ होता है ओमेगा, तो 2 पाई मीन्स 3.14 इंटू एफ मीन्स 50 हर्ज, 50 हर्ज दिया हुआ है। सो दिस वन विल बी 314 रेडियन पर सेकेंड। Okay, so from this one we can find out capacitance. Capacitance will be 1.594 millifarad. So this is your answer. So capacitance को find out किए, resistance को find out किए. So this is very easy questions. Okay, so we will move for the next question. So next question we will see, this is your question number I think third, so we will proceed for the fourth number question. Question number fourth, why I am solving this much AC numericals, because for the AC circuit analysis the calculation is tough, so I discuss many types of AC circuit analysis questions so that you can easily solve the questions numericals, and that will be easy to understand the concept related to AC circuit. Okay, so question number 4 is that the circuit with impedance of Z1 equal to 10 plus J15 ओम। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ फेजर। फेजर है क्या, नहीं है। एंड Z2 respectively are connected in parallel। दोनों दो इम्पीडेंस है और दोनों इम्पीडेंस कहाँ कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इफ़ द टोटल करंट सप्लाइड इज, अगर टोटल करंट सप्लाइज कितना है आपको 15 एम्पियर, फाइंड each branch current फाइंड आउट करना है, एंड देयर फेज एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल करंट। what will be or what is the voltage across the combinations and its फेज एंगल। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा उतना ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। द सर्किट विथ इम्पीडेंस, आपको दो इम्पीडेंस दिया हुआ है, एक दिया Z1 एक Z2, और उसको कहाँ कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। सिंपल है, दो इम्पीडेंस उसको पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको टोटल करंट दे दिया है 15 एम्पियर, टोटल करंट कितना दे दिया, 50 एम्पियर, टोटल करंट सप्लाई कितना दे दिया है, 15 एम्पियर। फाइंड ईच ब्रांच करंट, दोनों ब्रांच में करंट कितना होगा, एंड देयर फेज एंगल। पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जो बोला है, क्या बोला है कि दो इम्पीडेंस है, एक इम्पीडेंस इधर है तो दूसरा इम्पीडेंस इधर है। ये इम्पीडेंस हो गया आपको Z1 और ये इम्पीडेंस हो गया Z2,
ठीक है, दो इम्पीडेंस कनेक्टेड है पैरेलली, ओके, और इस दोनों को जो करंट जा रहा है वो मान लीजिए आई फेजर जा रहा है, और इसमें जो करंट जाएगा I1 फेजर, और इसमें जो करंट जाएगा I2 फेजर, सिंपल। और लेट द टर्मिनल पे जो है वोल्टेज आपको कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ योर V फेजर करंट, V फेजर वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। दिस इज योर सर्किट जो बोल रहा है, ठीक है। इच ब्रांच करंट का निकालना है, I1 I2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो टोटल करंट के साथ रेफरेंस, देखिए यहाँ पर टोटल करंट विथ रेस्पेक्ट टू टोटल करंट, तो टोटल करंट के साथ जो एंगल होगा I1 I2 का वो भी हम लोग को निकालना है कि I1 I2 का जो फेज एंगल होगा I से कितना आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है वो हमको एंगल कैलकुलेट करना, और जो वोल्टेज कनेक्टेड है आउटसाइड में उसका भी वोल्टेज निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू योर टोटल करंट। तो टोटल करंट के रेस्पेक्ट में निकालना है, सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट टोटल करंट दैट इज I एज रेफरेंस। I एज रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया जो हमारा फेजर है I उसका मैग्नीट्यूड I है और एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ये हमारा सीधा एजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है इसलिए हम लोग ने 0 डिग्री ले लिया है, ठीक है। अब सिंपल है, अब जितना भी थ्योरी हम मैंने बोला है DC सर्किट या रेजिस्टिव सर्किट के लिए होता है उतना इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो करंट डिवीजन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट आ रहा है उस वो क्या हो रहा है, दो पाथ में डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में। करंट डिवीजन फॉर्मूला वी विल यूज, सो करंट डिवीजन रूल या फिर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। सो I1 फेजर विल बी हाउ मच, I1 फेजर विल बी टोटल करंट दैट इज द I फेजर इंटू I1 निकाल रहे हैं ये करंट, ठीक है। तो ये करंट क्या होगा, जो पैरेलल इम्पीडेंस है वो लिखना पड़ेगा, Z2 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस Z1 प्लस Z2, सिंपल, कोई डाउट। सो वी विल पुट हियर द वैल्यू दैट इज द करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना दिया है 15 एम्पियर, सो दिस इज योर 15 एंगल 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड हो गया 15। सो I फेजर को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली 15, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। और Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 देखिए Z2 का जो वैल्यू है दैट इज 6 माइनस 8J, तो इसको एंगल के मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एंगल माइनस 53.1 डिग्री, इतना ओम। ये कैसे आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल में लिखते हैं, ठीक है। Z1 ये हो, Z2 ये हो गया, कोई डाउट। उसी तरह से अब Z1 का वैल्यू निकालिएगा, तो Z1 कितना है 10 प्लस J15, और ये 10 प्लस J15 का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू कितना होगा, 10 प्लस J15, सो 10 प्लस J15 इसका कितना आएगा आपको, मैं लिखता हूँ कैलकुलेट करके, दैट विल बी नथिंग बट योर 18.028 एंगल ऑफ 56.31 डिग्री, इतना ओम आएगा, ठीक है। आप एंगल में कैलकुलेट कर लो और उसके बाद सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है। अदरवाइज यू नीड टू पुट द Z2 का वैल्यू 6 माइनस 8J, टोटल नीचे में भी जोड़ ऐड करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 6 माइनस 8IJ डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 6 16 माइनस प्लस तो 7 और 7J, सो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको सॉल्व करने से आपका आएगा कितना 8.59 एंगल ऑफ माइनस
76.7 डिग्री एम्पियर। सो दिस इज़ योर एंगल। तो ये हो गया I1 कितना आया -8 इक्वल टू करंट कितना आया 8.59 एंगल ऑफ -76.7 एम्स। I1 हो गया। I2 फेजर क्या होगा I फेजर माइनस I1 फेजर। और अगरवाइज करंट डिवीजन रूल यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा I इंटू Z1 बाय Z1 प्लस Z2। सो इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आपको 15.49 एंगल ऑफ 32.7 डिग्री एम्पियर। समझ गए। सो देयर वोल्टेज फेजर क्या होगा V फेजर को कुछ भी लिख सकते हो आप I1 फेजर इंटू Z1 या फिर I2 फेजर इंटू Z2, कोई भी एक लिख सकते हो क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। सो पुट द वैल्यू एंड फाइंड द रिजल्ट। सो इट विल बी 154.9 एंगल ऑफ -20 डिग्री 20.4 डिग्री इतना वोल्ट हो गया। सो दिस इज योर V फेजर। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द गिवन सर्क्यूट। सो फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, तो जो रेफरेंस माने हैं, रेफरेंस क्या माने हो आप करंट। सो दिस इज योर करंट फेजर विच इज नथिंग बट योर रेफरेंस और I एंगल 0 डिग्री विच इज वैल्यू कितना है 15 एंगल 0 डिग्री एज्यूम किया है रेफरेंस। ओके और इसी रेफरेंस से आपको बनाना है, ठीक है। ओके तो पहले I1 को टारगेट कीजिए। I1 कितना -76.8 I1 -76.8 माइनस का मतलब क्या हो गया नीचे डाउनवर्ड्स। सो इट विल बी लाइक दिस वन। सो दिस इज योर I क्या है ये I1 फेजर दैट इज कितना वैल्यू 8 पॉइंट एंगल -76.7 डिग्री। ये हो गया I1 एंगल कितना है 76.7 डिग्री। ओके I1 हो गया। अब I2 कितना है +32.7 डिग्री। सो I2 +32 कहाँ पर होगा, सिंपली यहाँ पर होगा। तो ये हो गया आपको I2 फेजर दैट इज इक्वल टू 15.49 एंगल ऑफ 32.7 डिग्री और ये एंगल कितना होगा आपको 32.7 डिग्री। I1 I2 हो गया। उसका टोटल वोल्टेज कितना है एंगल -20 मीन्स नीचे होगा। सो इट विल बी योर -20। सो दिस विल बी योर V फेजर दैट इज इक्वल टू जो भी है वैल्यू लिख देना और ये वैल्यू आ जाएगा आपको 20.4 डिग्री। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर द गिवन सर्किट। और एक बात ध्यान रखना ये जो I है I क्या है टोटल करंट है दैट इज द सम ऑफ द I1 एंड I2। सो I1 और I2 का जो रिजल्टेंट है वो आपका टोटल करंट है। देयरफॉर दिस शुड बी लाइक दिस वन। ओके मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का रिजल्टेंट हमारा I रेफरेंस करंट है। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम एंड दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द सर्क्यूट फाइंड Z in का मतलब हो गया इनपुट इम्पीडेंस को हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस भी बोलते हैं विथ नंबर ए बी क्या है आपका ए बी हो गया आपको ओपन सर्क्यूटेड। नंबर बी ए बी को आप शॉर्ट सर्क्यूटेड। नंबर सी ए बी टर्मिनल को आप कनेक्ट कर दो कनेक्टेड थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस ओके
और आपको गिवन है also given ओमेगा इक्वल टू 400 रेडियन पर सेकेंड। सो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट क्या है, सर्किट मैं आपको बना देता हूँ। ये आर हो गया, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल हो गया, ये हो गया 25 मिली हेनरी, मिली मीन्स 10⁻³ और कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया आपको 250 माइक्रो फैरेड एंड दिस इज़ योर नथिंग बट योर 10 ओम रेजिस्टेंस और दिस इज़ योर, यहाँ से आप लुक कर रहे हो तो जेड इन इनपुट इम्पीडेंस बोलो या फिर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस सर्किट में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या बोला कि फॉर द सर्किट फाइंड जेड इन निकालना है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, ए बी, आपको ए बी टर्मिनल क्या है, ये दोनों टर्मिनल फर्स्ट में ओपन है। सेकेंड में क्या किया, ए बी को शॉर्ट किया है। शॉर्ट मीन्स एक वायर से आप सिंपली ऐसे कनेक्ट कर दो, शॉर्टेड, समझ गए। सो उसके बाद ए बी को आप कनेक्ट कर दिए एक रेजिस्टेंस से जिसका ओम है 10 ओम रेजिस्टेंस, सिर्फ कनेक्ट करके उसके बाद आपको जेड इन निकालना। मीन्स 3 केस है, तीनों केस में आपको वैल्यू जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। सो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में पहले आप एक्सएल का वैल्यू निकालो। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब ओमेगा का हो गया 400, पुट कीजिए, एल का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻³ सो पुट करके निकालिए, ये 10 ओम आ गया, ठीक है। एक्स सी का वैल्यू कितना आएगा, एक्स सी मीन्स 1/ω/c, एक्स सी मीन्स इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स सी हो गया ये। एक्स सी कितना होगा बताइए, कैपेसिटेंस हो गया 250 माइक्रो फेरेड और ओमेगा कितना है 400 रेडियन पर सेकेंड। सो इट इज़ ऑल्सो 10 ओम, 10 ओम ही आ रहा है, ठीक है। सो नंबर ए ऑप्शन में क्या है, ए बी आपका ओपन, ए बी आपका ओपन सर्किट है। ए बी ओपन सर्किट है तो ये क्या बनेगा डायग्राम, ठीक है। ये आपका क्या है जे एक्स एल और ये माइनस जे एक्स सी और ये आपका आर है। यहाँ से आप देख रहे हो जेड इनपुट। लेकिन जैसे ही ए बी ओपन है, ए बी टर्मिनल ओपन है तो इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं। तो इम्पीडेंस जो आप देखिएगा क्या होगा, वो आर और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको सीरीज में हो जाएगा, समझ गए। सो इधर में जेड इनपुट क्या हो जाएगा आपको, आर माइनस जे एक्स ऑफ सी, सिंपल। सो इसका वैल्यू कितना आएगा 10 माइनस 10J और इसको यदि मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो कितना होगा 14.14 एंगल ऑफ -45 डिग्री, इतना ओम। सो 14.14 एंगल ऑफ -45 डिग्री, ये ए नंबर हुआ। अब बी में देखते हैं, बी में क्या है आपको, ए बी शॉर्ट सर्किटेड। ए बी को आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ए बी को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया इस तरह से सर्किट बन गया, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर यहाँ से जेड इम्पीडेंस देखो, जैसे आप रजिस्टर में कैलकुलेट करते तो क्या दिखेगा, आर होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गया आपको पैरेलली हो गया, आर प्लस आर तो हो गया प्लस जे एक्स एल पैरेलल विथ माइनस जे एक्स सी, ये दोनों क्या हो गया पैरेलली हो गया। सो आर का वैल्यू कितना है 10 प्लस पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है 2, तो क्या करता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, उसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 10J इंटू माइनस ऑफ J10 डिवाइडेड बाय सम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 मीन्स 10 प्लस J इन्फिनाइट और दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट एंगल ऑफ 90 डिग्री, सिंपल।
तो ये मतलब क्या, एक तरह से जेड इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, दिखेगा आपको क्या, ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। मीन्स इसमें ओपन सर्किट इन्फिनिटी आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस, मीन्स इसमें करंट कुछ जाएगा ही नहीं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ना ऑप्शन नंबर सी के लिए देखेंगे कैसे सॉल्व किया हम। सी के लिए क्या है, ए बी connected through 10 ohm resistance, 10 ohm resistance से कनेक्ट करते हैं। सो दिस विल बी लाइक दिस वन, आर एल ये जो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड थ्रू कितना है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। ये क्या है, जे एक्स एल, ये क्या माइनस जे एक्स सी, और ये क्या है आपको आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर जेड इनपुट देखोगे तो क्या दिखेगा बताइए, ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों सीरीज में होगा, और उसके साथ ये, इसके साथ ये क्या होगा, पैरेलल में होगा। समझ गए। सो इसको मान लीजिए आप, ये रेजिस्टेंस को मान लीजिए R1, R1 इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, सो जेड इनपुट क्या हो जाएगा आपको, आर, ये रेजिस्टेंस इसके साथ प्लस करेंगे, और बड़ा सा ब्रैकेट में क्या होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज मीन्स जे एक्स एल प्लस R1, और इसके साथ पैरेलल में हो रहा है आपको माइनस जे एक्स सी। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, तो दिस विल बी 10, जेड इनपुट क्या हो गया 10 प्लस ब्रैकेट, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में करोगे तो ये क्या होगा 10 प्लस जे 10 पैरेलली विथ माइनस 10 जे। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस R1 एंड R2 पैरेलल है, तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। सो 10 प्लस 10 जे इंटू माइनस ऑफ 10 जे डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 माइनस जे 10, और दिस विल बी इक्वल टू 14.14 एंगल ऑफ माइनस 45 डिग्री ओम। सो दिस इज योर आंसर। सो जेड इन कितना आया, 14.14 एंगल माइनस 45 डिग्री। मीन्स सी और ए एंड सी केस में दोनों में क्या है, सेम ही वैल्यू आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर जो एंगल लिए ये कैसे है, एंगल क्या होता है, 10 इनवर्स ऑफ वाई मीन्स कॉम्प्लेक्स बाय रियल, तो इन्फिनिटी बाय 10, तो ये क्या होगा 10 इनवर्स इन्फिनाइट। 10 इनवर्स इन्फिनाइट इज नथिंग बट योर 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री लिखे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। Now we will move for the question number 6. Question number 6 क्या है, इन द, हम इसलिए ये इतना क्वेश्चन करवा दिया है, बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसी सर्किट, क्योंकि जितना भी अभी पढ़ेंगे 3 फेज सर्किट हो गया, 3 फेज पावर मेजरमेंट हो गया, रेजोनेंस हो गया, सब में इसका यूज होगा। ठीक है, इसलिए इतना क्वेश्चन कराना ही पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, फाइंड क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए बार बार। ठीक है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप बाद में भी सॉल्व कर, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, और उतना आपका स्कोर, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें स्कोर भी आपका इंक्रीज होगा। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना आप कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए क्यों ना हो। आईएएस का कोई करता है तैयारी तो उसको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होता है। जैसे मेंस में जो आंसर राइटिंग होता है उसके लिए जितना प्रैक्टिस करता है उसको उतना अच्छा नंबर आता है। ठीक है, उसी तरह टेक्निकल फील्ड में भी आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व होगा। ठीक है,
सो दिस इज़ योर सर्किट, सर्किट आपको दिया हुआ है। लेट ओमेगा आपको ले लीजिए, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 रेडियन पर सेकेंड, समझे, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसका सॉल्व करना है, क्या करना है, इन द पैरेलल सर्किट गिवन फाइंड करंट आई फेजर का निकालना है। इफ़ आई आर का वैल्यू दिया है सेकेंड केस में, एंड सेकेंड केस में आई आर का वैल्यू निकालना है अगर आपका मेन करंट टोटल करंट दिया होगा। एंड ऑल्सो फाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, क्या होगा, ये नेट वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो किसी एक ब्रांच का वोल्टेज निकाल लीजिएगा तो वही आपका पैरेलल वोल्टेज होगा। एंड उसके ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एक्स ऑफ सी। एक्स ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 200, और कैपेसिटेंस का वैल्यू है आपको 50 माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड। सो दिस विल बी योर 100 ओम। सॉल्व कीजिए, आपको मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया है। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू 200, एल का वैल्यू 0.5 हेनरी। सो दिस विल बी योर 100 ओम। सेम एक्सएल एक्सी निकल गया। नंबर ए में निकालना है आपको आई आर। तो पहले आप अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा बताइए, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड फेजर जो है, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, सिंपल है, आई आर फेजर इंटू, क्योंकि आई आर दिया हुआ है ना, आई आर फेजर इंटू आर। तो आई आर फेजर कितना है आपको 0.02 इंटू 200 इंटू 0.02 एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो दिस विल बी नथिंग बट योर 4 एंगल 30 डिग्री, दिस मच योर वोल्टेज हो गया। नंबर 1 आई एल फेजर क्या होगा, आई एल फेजर आप कैसे निकालोगे बताइए। करंट निकालना है तो वोल्टेज कितना है, वी फेजर डिवाइडेड बाय जो इम्पीडेंस होगा, इसका इम्पीडेंस कितना होगा जे एक्स एल, और इसका माइनस जे एक्स सी। सो 1/JXL कर दीजिए आप, सिंपल। सो वी का मतलब कितना हो गया 4 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय JXL। JXL का मतलब क्या हो गया, XL का वैल्यू 100 है, 100, और जे का मतलब एंगल 90 डिग्री। सो 100 एंगल 90 डिग्री। सो दिस विल बी, जब भी एंगल डिवीजन में हो तो उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब एंगल प्रोडक्ट में तो एंगल को ऐड करते हैं। दैट इज़ द सिंपल मेथड और यू कैन से फॉर्मूला। सो एंगल क्या हो जाएगा, माइनस में 30 माइनस 90 कितना होगा, -60 डिग्री। सो दिस इज योर इतना एम्पियर करंट हो गया आई एल। सो उसी तरह हम लोग आई सी फेजर निकालेंगे, दैट इज वी फेजर बाय माइनस जे इंटू एक्स ऑफ सी। सो 4 एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 100, एंगल कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर माइनस जे है तो -90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो 30 प्लस ये 90 ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा +90। सो 30 प्लस 90 120। सो 4/0.04 एंगल ऑफ 120 डिग्री, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा, समझे। एंड सो टोटल करंट विल बी हाउ मच, टोटल करंट विल बी आई आर फेजर प्लस आई एल फेजर प्लस आई सी फेजर, तीनों को ऐड करना है। सो आप तीनों को ऐड करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0.02 एंगल ऑफ 30 डिग्री, इतना एम्पियर आएगा, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो रेफरेंस हम लोग क्या लेंगे इसमें, रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेफरेंस मान लीजिए ये आपने रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब हो गया 0 डिग्री। इसके कंपेयर में वोल्टेज कहाँ पर है, वोल्टेज आपको +30 वोल्टेज, हाँ +30 डिग्री में। सो वी विल ड्रॉ द वोल्टेज एंगल विथ एंगल 30 डिग्री। सो दिस इज योर वी फेजर, वी फेजर का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आई एल फेजर का बताइए कितना है, -60 डिग्री, -60 डिग्री कुछ इस तरह से होगा। सो दिस इज योर आई एल फेजर, आई एल फेजर जो कि एंगल है -60 डिग्री। सो ये कितना हो गया आपको 60 डिग्री आई एल फेजर हो गया। आई सी फेजर का एंगल कितना है, आई सी फेजर का +120, ये 90 होगा और ये 120। सो ये हो जाएगा आपको आई सी फेजर जो कि रेफरेंस से 120 डिग्री हो गया, आई सी फेजर हो गया। सो ये हो गया आपको फेजर डायग्राम। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक द फेजर डायग्राम। और टोटल करंट का एंगल कितना है 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स किधर होगा 30 डिग्री तो इधर ही होगा। सो दिस विल बी योर आई फेजर। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम, और दिस इज नथिंग बट योर सम ऑफ द टू। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम,
और इसका ये रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट टोटल करंट क्या क्या होगा, आई एल प्लस आई सी प्लस आई आर। आई आर किधर है आपका, आई आर 2 एंगल माइनस 40 डिग्री। आई आर कितना है, 2 एंगल 30 डिग्री। तो आई आर भी इसी साइड है, आई आर भी, आई आर किधर है, इसी साइड है, ठीक है। और आई एंड आई आर इज़ द सेम, यस आई एंड आई आर द सेम, सो आई फेजर इक्वल टू आई आर फेजर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आई सी और आई एल जो है ना दोनों कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आप देखो एंगल बिटवीन क्या है, ये आपका आई एल है और आपका ये हो गया आई सी, और ये एंगल कितना 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 0.04, इसलिए ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसल आउट। कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, जो आई आर, आई इक्वल टू आई आर ही बचेगा, क्योंकि एक्सेल इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर करंट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ रजिस्टर में जो करंट होगा। सो इसलिए हमारा टोटल करंट जो है रजिस्टर करंट के बराबर होता है, ठीक है इसके क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या है, पॉइंट नंबर बी। नंबर बी में क्या है, नंबर बी में क्या है, नंबर बी में वी नीड टू फाइंड आउट द आई आर इफ़ आई इज़ गिवन, टोटल करंट इज़ गिवन है, आई आर हम लोग को फाइंड आउट करना है और वोल्टेज भी। तो नंबर बी में क्या करना है आपको, 1/z इनको क्या लिख सकते हैं, या 1 एडमिटेंस माइनस जे एक्स सी प्लस 1/j एक्सएल प्लस 1/r। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ से आपको फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन फाइंड आउट जेड इन। जेड इन कितना आ जाएगा 200 ओम, जेड इन कितना आ गया 200 ओम आ गया। उसके बाद भी फेजर क्या हो जाएगा, आई इंटू आई फेजर इंटू जेड इन। तो आई फेजर कितना है आपको, आई फेजर आपको दिया हुआ है 2 एंगल माइनस 40 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू 400 एंगल ऑफ माइनस 40 डिग्री। यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा वोल्ट, वोल्टेज है। सो आई आर फेजर क्या होगा, भी फेजर बाय आर। सो भी फेजर कितना हो गया 400 एंगल माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय आर कितना है आपका 200। सो इट विल बी नथिंग बट योर 2 एंगल ऑफ माइनस 40 डिग्री, इतना एम्पियर। सो इसका फेजर डायग्राम बनाइए, आपको क्या होगा, सेम क्या, ये रेफरेंस हो गया, मान लीजिए रेफरेंस। इसके साथ आपका वी ऑफ आर क्या है, वी ऑफ आर टोटल करंट कितना है, टोटल करंट भी आपका 2 एंगल माइनस 40 डिग्री है एम्पियर, एंड दिस विल बी नथिंग बट योर आई आर फेजर। ओके, रेफरेंस क्या हो जाएगा, रेफरेंस तो हो गया। आई आर, वी आर फेजर क्या है, ये हो गया आपको वी आर फेजर। वी आर फेजर इसी में होगा, आई आर फेजर भी यहीं पर होगा, और आई आर फेजर इज नथिंग बट योर आई फेजर, जो कि एंगल है माइनस 40 डिग्री का। समझ गए, ये तो ये फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, आई एल एंड आई सी दोनों क्या होता है, कैंसल, दोनों फेजर क्या आता है, कैंसल आउट, एक दूसरों को कैंसिल कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो एक्सएल एंड एक्सी का सेम वैल्यू है, इसका और इसका वैल्यू सेम है, तो सो एक करंट लैगिंग करंट लेगा सेम वैल्यू, एक करंट लीडिंग करंट लेगा, इसलिए ये सर्किट में जो ना हमेशा आई सी आई एल जो है हमेशा कैंसल आउट होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सिर्फ बचेगा क्या, इसमें रेजिस्टिव पार्ट ही बचता है। समझ गए। सो दिस इज फिफ्थ सॉल्यूशन फॉर द 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिले, ठीक है। और इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी वन को मालूम हो कि इस टाइप का चैनल भी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।